children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, reproduction in animals. Let's learn about defining reproduction, animals that give birth to their young ones, animals that lay eggs, life cycle of animals, take care of young ones. Reproduction. Reproduction is the process by which animals produce the young ones. This process is very important for the species to grow. If reproduction stops, the species will become extinct. Animals have mainly two different ways of reproduction. Animals that give birth to their young ones, the baby develops inside the body of the mother. The animals that lay eggs, the baby hatches out from the egg. Reproduction एक process है जिसमें animals अपनी young ones produce करते हैं. Young ones यानी babies. और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीशीज के ग्रो करने के लिए. अगर रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. एनिमल्स हैव मेनली टू डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस, द बेबी डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर. एनिमल्स दैट ली एग्स, द बेबी हैचेस आउट फ्रॉम द एग. रिप्रोडक्शन आपका ये प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स अपनी यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. यंग वंस यानी बेबीज. एंड रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो दो तरीके हैं आपके जिससे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं. इसमें बेबी का जो डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के इनसाइड होता है. और दूसरा एनिमल्स अंडे देते हैं और उन एग्स में से उनके बेबीज हैच आउट होते हैं. Animals that give birth to their young ones. Mammals are animals that give birth to their young ones of their own kind. For example, cow, dog, pig, elephant, horse, tiger, whale, dolphins, etc. The cat gives birth to kittens. The dog gives birth to puppies. The pig gives birth to piglets. The sheep gives birth to lambs. The cow gives birth to cows, and so on. Mammals आपके वो animals होते हैं जो अपने बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं अपने ही तरह के. जैसे आपके काउ, डॉग, कैट एट्सेट्रा. जैसे आपको पता है काउ किसको बर्थ करती है, किटन्स को, डॉग, पपीज को, एंड सो ऑन. दीज animals feed the young ones with their own milk until they start eating other feeds. These animals are called mammals. Whales, dolphins and bats also give birth to their young ones. ये animals जो होते हैं अपने young ones को दूध पिलाते हैं अपना, और जब तक कि ये दूसरा खाना नहीं खाते हैं, और इन एनिमल्स को बोला जाता है मैमल्स. इसी तरह से आपके जो वेल्स, डॉल्फिन एंड बैट्स हैं ये भी आपके मैमल्स हैं क्योंकि अपने बच्चों को जन्म देते हैं. ऑल मैमल्स हैव सम कॉमन फीचर. Mammals reproduce by giving birth to young ones of their own kind. Their bodies are covered with hair or fur to keep them warm. Most mammals live on land. Whales and dolphins are mammals found in water. Some mammals like monkeys and squirrels are arboreal. Bats that fly in the air are also mammals. मैमल्स जो हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं. इनकी बॉडी जो है हेयर से कवर्ड होती है या फर से कवर्ड होती है जिससे वार्म रहते हैं. और ज़्यादातर मैमल्स आपके लैंड पे रहते हैं, जबकि आपके जो वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैं ये ऐसे मैमल्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं. इसी तरह से मंकीज़ एंड स्क्विरल है आपके, ये आर्बोरियल है. आर्बोरियल जो ज़्यादातर टाइम अपना पेड़ों पे स्पेंड करते हैं. और बैट आपको पता है हवा में फ्लाई करता है, ये भी एक मैमल है. एग लेइंग मैमल्स. द डक बिल्ड प्लेटिपस डज नॉट give birth to babies but lay eggs. It has a duck-like beak, a furry coat and a paddle-shaped tail like a beaver. The other egg-laying mammal is a spiny anteater called echidna. It has spiky hair on its body and feeds its young one on milk like mammals. अब कुछ ऐसे mammals हैं जो बच्चों को जन्म तो नहीं देते लेकिन उन्हें दूध ज़रूर पिलाते हैं. जैसे आपका duck-billed platypus है, ये eggs देता है. इसी तरह से आपका echidna है, ये भी बच्चों को जन्म नहीं देते बल्कि ये एग ले करते हैं बट अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. Animals that reproduce their young ones by laying eggs. Animals like birds, insects, snakes, frogs, fishes, turtles, lizards, crocodiles, cockroaches, butterflies and mosquitoes reproduce by laying eggs. अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं. Structure of an egg. The eggs of all animals have similar structure. There is an outer shell that protects the egg. It protects the baby inside. अब देखिए एग जो होता है एनिमल का सबका ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है. इनका एक एग शेल होता है जो कि बेबी होता है अंदर उसको प्रोटेक्ट करता है. There is a soft jelly-like substance within the egg shell which is rich in protein called the albumin. The yellow part inside the egg is called yolk. Inside the yolk there is an embryo which develops into a chick. The chick gets its food from the yolk. Various stages of development from an embryo to an adult is
कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। अब आउटर स्ट्रक्चर इसका जो है, जो एग शेल होता है वो कवर करता है, वो प्रोटेक्ट करता है इनसाइड जो बेबी होता है। इसके अंदर एक सॉफ्ट जेली जैसा सब्सटेंस होता है एग शेल के अंदर, जो कि प्रोटीन रिच होता है, जिसे एल्बुमिन कहा जाता है। इसके बाद येलो पार्ट होता है एग के इनसाइड, जिसे बोलते हैं यॉक, और यॉक के अंदर एक एम्ब्रियो होता है जो कि चिक में डेवलप हो जाता है। तो जो वेरियस स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की एम्ब्रियो से एडल्ट बनने तक की, उसे कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द एनिमल। बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट। Mother birds sit on the eggs to keep them warm. This process is called incubation. This helps the baby bird to grow inside. After a fixed period, the egg breaks and the young one is born. The process of coming out of the baby bird from the egg is called hatching. अब ज़्यादातर birds जो है वो eggs देती हैं अपने nest में। मदर बर्ड उन एग्स पे बैठती है, उन्हें वार्म करती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्यूबेशन। इसके बाद बेबी बर्ड जो है इसके अंदर ग्रो करता है, और कुछ फिक्स पीरियड के बाद एग ब्रेक होता है और उसमें से यंग वन निकलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग। पेरेंट बर्ड्स फीड देयर बेबीज टिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। और पेरेंट बर्ड जो होती है अपने बेबीज को जब तक वो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते तब तक उनका वो ख्याल रखते हैं। एक्टिविटी टाइम, टेक एन egg and boil it, crack its outer shell, cut the egg in 2 parts, you will see the egg white and egg yolk। एक egg लेंगे आप, आई एम श्योर आप लोग खाते भी होंगे, उसे बॉईल करना है, उसको उसका आउटर शेल क्रैक करना है, उसको 2 हाफ्स में आप डिवाइड करेंगे तो आपको एग वाइट और एग यॉक नजर आएगा। फिश, फिश ले मेनी एग्स इन वाटर एट अ टाइम। एग्स ऑफ फिश आर कॉल्ड स्पॉन। बेबी फिशेस hatch from the eggs. After a week, the baby fish matures into a fish. A baby fish is called fry. Many eggs and young fish are eaten by big fish. अब फिश एक टाइम पे thousands of eggs देती है, और इन जो eggs होते हैं फिश के उन्हें बोला जाता है spawn. बेबी फिश इनमें से हैच होती हैं, और एक वीक के बाद जो बेबी फिश होती है मैच्योर हो जाती हैं फिश में, तो बेबी फिश को बोला जाता है फ्राई। और बहुत सारी एग्स और जो यंग फिश होती हैं उन्हें बड़ी फिश खा जाती हैं। डू यू नो फिशेस ले many eggs at a time? Only a few of them grow into small fishes because some big fishes eat the small fishes. Fishes एक टाइम पे बहुत सारे एग तो देती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ग्रो कर पाते हैं स्मॉल फिशेस में, क्योंकि जो बड़ी फिशेस होती हैं इन छोटी छोटी फिशेस को खा जाती हैं। फ्रॉग, frogs like fishes lay many eggs at a time. The eggs lie in a jelly-like mass in the water. The young ones of a frog are called tadpoles. Frogs में fish की तरह बहुत सारे अंडे देते हैं, और जो frog का young one होता है उसे बोलते हैं tadpoles. Tadpoles have no legs, but they have fins to swim. After about 2 months, lungs and legs appear. They have gills for breathing underwater. The feeding habits change into an adult frog. अब टेडपोल्स के कोई लेग्स नहीं होते, बट इनकी फिन्स होती हैं स्विम करने के लिए, और लगभग 2 महीने के बाद इसके लंग्स भी डेवलप हो जाते हैं और लेग्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। जब भी पानी में होते हैं तो इनके पास गिल्स होते हैं जिससे कि ब्रीथ करते हैं। रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स एंड टॉर्टाइस आर रेप्टाइल्स. Reptiles lay their eggs on ground. Usually, they dig holes in the ground near water and store their eggs inside them. They never look after their eggs. The babies hatch and crawl out of the holes and go to the water nearby. अब आपके जो reptiles हैं वो अपने अंडे देते हैं ग्राउंड पे। यूजुअली ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड में गहरा सा एक होल करते हैं, डिग करते हैं वाटर के पास, और उसके बाद अपने एग्स को वहाँ स्टोर करके रखते हैं। बट ये अपने एग्स को कभी भी नहीं देखते, उनको लुक आफ्टर बिल्कुल भी नहीं करते। उसके बाद बेबीज उसमें से हैच आउट करते हैं एंड होल से क्रॉल आउट करते हुए वापस पानी के पास चले जाते हैं। इंसेक्ट्स, the insects like grasshopper, cockroach and butterfly develop from eggs. When a babies of these insects hatch, they look like the parent insects, but they do not have wings. अब आपके कुछ इंसेक्ट होते हैं, ये भी एग्स क्या करते हैं, दे एंड बटरफ्लाई डेवलप फ्रॉम एग्स। अच्छा, insect, the insects like grasshopper, cockroach and butterfly develop from eggs. When the babies of these insects hatch, they look like the parent insects, but they do not have wings. Butterfly and housefly have 4 stages in the life cycle, namely egg, larva, pupa and adult. अब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ये एग से डेवलप होते हैं, और जब इनके बेबीज हैच आउट होते हैं तो बिल्कुल ये पेरेंट इंसेक्ट जैसे दिखते हैं, बस उनके विंग्स नहीं होते हैं। बटरफ्लाई और हाउसफ्लाई के 4 स्टेजेस होते हैं। अ बटरफ्लाई लेज eggs. First, the egg hatches into a larva. It looks different from the parent. The larva of a butterfly is called caterpillar. देखिए आपको यहाँ पे ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल दे रखी है। बटरफ्लाई एग्स ले करती है,
तो पहले जो एग हैच होता है लार्वा में, उसके ये डिफरेंट होता है पेरेंट से। उसके बाद जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का, उसको कैटरपिलर भी बोलते हैं। द कैटरपिलर ईट्स एंड grows rapidly. After some time, it stops eating and cover itself in cocoon. This stage is called the pupa. इसके बाद कैटरपिलर क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी खाता है और ग्रो करता है रैपिडली। इसके बाद ये खाना स्टॉप कर देता है और अपने आप को कवर करता है कोकून से, और इस स्टेज को बोला जाता है प्यूपा। Pupa sheds skin many times to change into an adult butterfly. The process of shedding the skin is called molting. अब प्यूपा जो है अपनी स्किन को काफ़ी बार शेड करता है जब वो एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग, यानी जो प्रोसेस होता है जिसमें स्किन शेड होती है, दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग। Grasshoppers and cockroaches pass through 3 stages in their life cycle, namely egg, nymph and adult. The young insect that comes out of the egg looks like the adult. This young insect is called a nymph. अब ग्रास होपर और जो कॉकरोचेस हैं ये अपनी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस से पास होते हैं, और इनके जो यंग वन होते हैं बिल्कुल इनकी तरह ही दिखते हैं और उन्हें कहते हैं निम्फ। टेक केयर ऑफ यंग वंस। मदर मैमल्स टेक केयर ऑफ द यंग वंस। मदर फीड्स देम एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज। In some mammals such as monkeys and wolves, the father also takes care of the babies. Kangaroos have a pouch on their body to carry their young ones. अब जो मदर मैमल्स होती हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं। जनरली मदर अपने बच्चों को फीड करती हैं, बट कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जैसे कि मंकी एंड वुल्व्स, इनमें फादर भी अपने बच्चों का ध्यान रखता है। और कंगारू तो आपने देखा होगा, उसकी बॉडी में ऐसा पाउच होता है जहाँ ये अपने बेबी को कैरी करता है जिसमें। Let's remember, the process of producing young ones is called reproduction. Animals that give birth to their young ones are called mammals. Birds, insects, reptiles, fish and snails lay eggs. जो प्रोसेस है यंग वंस को प्रोड्यूस करने का उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल, फिश, ये सभी अंडे देते हैं। The process of shedding the old skin is called molting. The process of supplying warmth to the egg so that it develops into a baby is called incubation. पुरानी स्किन को शेड करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है molting, और incubation आपका प्रोसेस होता है जिसमें बर्ड अपने एग को वार्मथ प्रोवाइड करती है। So children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।